Hello, everyone, and welcome to my YouTube channel. Today, we are again in another episode where we will discuss something new about one of the non-technical or non-traditional, I would say, topics that CA works on. So, we have Anmol Jaju with us. So, Anmol Jaju is right now working in Deloitte with a non-traditional profile that he will let us know. So, Anmol, you can proceed with your profile. Hi, Sudhanshu. Firstly, nice to connect with you and thank you for having me here. I've been working with Deloitte in audit and accounting advisory services, and my exposure has been more on accounting advisory services, which field is not very popular, or you can say comparatively new, and it is all about working for the client for providing them accounting technical services wherein the client feels that they need additional support or some expertise Mhm. in their day-to-day accounting. They involve us on that front, so that is where our role comes. And so yes, it involves a plethora of services within this scope. And yes, I can of course share with you more as we go on during our discussion. Yeah. So अनमोल आगे बढ़ने से पहले if you can give us a brief introduction कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका क्या एक्सपोजर रहा before working for Deloitte इस डोमेन में या while working for this domain. Okay, cool. So I qualified my CA final in November 2019 और मैंने मेरी 3 साल की जो आर्टिकलशिप है वो Deloitte India से ही परस्यू की थी in statutory audit. So that time my experience was purely in statutory audit. So I was auditing companies in manufacturing sector, finance sector, healthcare sector. And then after qualification, I completed my articleship in March 2020 and उस वक्त वो COVID आ गया था. So कहीं ना कहीं hiring को लेके मार्केट में काफी गैप्स थे. सो वहां पे उस मोमेंट के लिए 6 मंथ्स के लिए आई वाज स्टिल एक्सप्लोरिंग कि मुझे क्या लेना है आगे. एंड Mhm. देन आई जॉइंड इंटरट्रस्ट विटियोस एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी इन फंड अकाउंटिंग टीम. So we were looking after the hedge accounting for private equity funds based in London and UK. Mhm. So I spent around 6 months with them and कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे वो client facing role की आदत थी audit के time पे. So I might Mhm. not set in there. So और since वो remote working भी था, so मैं comfortable नहीं था, which is why then I switched to L&T. So I was working with their defense and aerospace vertical, and I Mhm. was working for the financial reporting team. So the consolidation for 7 locations used to happen from Mumbai. So I was a part of that team, and I spent around 14 months with L&T, and eventually I switched to Deloitte again. And it has now been nearly 15 months working with Deloitte, and my experience has been really good in audit and accounting advisory. And we have been working on different sort of services in advisory domain now. Okay. Okay. तो अनमोल जो आप डिपार्टमेंट में हो अकाउंटिंग एश्योरेंस तो Hmm, hmm. इसको दूसरे बिग फोर में शायद और भी डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं है ना तो वो आप नाम Right. बता सकते हो कि व्हाट आर द अदर नेम्स. जी जी. सो डेलॉइट में जैसा आपने कहा दे कॉल इट अश्योरेंस. सो ऑडिट एंड अश्योरेंस में अश्योरेंस को उन लोग अकाउंटिंग एडवाइजरी को उस नाम से बुला रहे हैं. ईवाई की अगर आप बात करें तो दे कॉल इट फैस इन शॉर्ट, एंड इट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडवाइजरी सर्विसेज. हम्म. PwC में दे कॉल इट अकाउंटिंग एडवाइजरी. आई थिंक CFO एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एडवाइजरी सर्विसेज ऐसा है. CMAS करके कुछ एक शॉर्ट फॉर्म है उनका. हम्म. KPMG calls it CFO advisory because it is more like CFO के को एक support आप लोग दे रहे हैं फाइनेंस फंक्शन को. So they हम्म. call it that way. अगर मैं बिग फोर के अलावा जो नेक्स्ट जो फर्म्स आती है उनकी बात करूं तो GT calls it as फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग सर्विसेज, एंड BDO also calls it accounting advisory. So आप देखोगे तो यू नो सर्विस वही है अकाउंटिंग एडवाइजरी और एक्स्ट्रा हैंड टू द फाइनेंस टीम. बट यस, एवरी फर्म हैज अ डिफरेंट वे ऑफ कॉलिंग इट. ओके. ओके. तो लेट्स सपोज अगर किसी को इस डोमेन में करियर बनाना है तो व्हाट हम्म. ऑल स्किल्स दैट दे नीड टू हैव बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस या फिर एक बार वो इस डोमेन में घुस जाए तो फिर क्या क्या स्किल्स एक्वायर करना पड़ेगा.
Okay. So, in case the person is from statutory audit, well and good, because stat audit में आप इतनी अच्छी तरह से train होते हैं, wherein you get to see the business का हम्म, process understanding भी मिल जाता है, उसके accounting implications भी, आप financial statements को इतनी अच्छी तरह से analyze कर पाते हैं, so of course वो help करता है. But in case आप उस field से नहीं भी हैं, but इस field में जा रहा है कोई, so they need to firstly understand financial statements really very well. एक company के financials में क्या चीजें आती है, कहाँ किस जगह से क्या flow होता है, वो एक बहुत हम्म, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है. इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड इंडस्ट्री प्रोसेसेस कैसे होते हैं वो भी समझना जरूरी, बिकॉज अनलाइक ऑडिट, अकाउंटिंग एडवाइजरी इतना रिपीट नहीं होता. ऑडिट में आप एक ही कंपनी को एटलीस्ट 5 साल तो ऑडिट कर ही रहे हैं. हम्म, एडवाइजरी सर्विस में एवरी क्लाइंट एवरी असाइनमेंट इज समथिंग न्यू, सो आपको अब्रेस्ट रहना पड़ता है विद द इंडस्ट्री अपडेट्स, बिकॉज से आज कोई नया स्टैंडर्ड आ रहा है, आपके क्लाइंट पे वो कैसे इम्प्लाई होगा वो आपको उस फाइनेंस फंक्शन को या सीएफओ को बताना है. दे वोंट बी एबल टू कम आउट विद दैट थिंग, यू हैव टू टेल देम. हम्म, इनफैक्ट हम्म, आप वैल्यू एड और नया इन्फो जब उनके लिए लेके आओगे, सर दैट विल बी अप्रिशिएटेड. सो यू नीड टू बी रियली वेरी अब्रेस्ट विद द अपडेट्स. एंड टेक्निकल फ्रंट पे अगर मैं बोलूं तो इंडेस और आईएफआरएस में बोलूंगा इज अ की. अगर आपका असाइनमेंट उसी के अराउंड है तो आपको वो चीज बहुत अच्छे से आनी जरूरी है, बिकॉज जब आप इस पे रियली काम करते हैं आपको समझ में आता है. आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन और खुल जाते हैं. सो हम्म, आपको कौन से स्टैंडर्ड को अप्लाई करके उस क्लाइंट के साइड पे कैसे काम करना है, वो एक थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला टास्क रहता है. सो दैट इज वाई दैट यू नीड टू हैव योर टेक्निकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. ओके, तो काफी हैपनिंग प्रोफाइल लग रहा है आप जैसा बता रहे हैं इस जरिए से. एब्सोल्युटली. जी, मेरे को विदाउट आई मीन स्पीकिंग नेगेटिव अबाउट एनी फील्ड, बट आई थिंक ऑडिट से ज्यादा हैपनिंग मुझे ये लगता है, बिकॉज हम्म, नेचुरली एवरी डे समथिंग न्यू, न्यू क्लाइंट, न्यू असाइनमेंट. ऑफकोर्स एक असाइनमेंट हो सकता है आपका 1 महीने, 6 महीने या साल भर भी चले, बट हम्म, ऑफकोर्स उसमें कुछ नया होता रहता है. और सिंस आपको वो इंडस्ट्री ट्रेंड्स को अप्लाई करने का जरूरत पड़ता है, सो दैट इज वेयर वो आपको कहीं ना कहीं रोज एक नया लर्निंग दे देता है. ओके, ओके. तो अनमोल, अगर आपको कोई सा इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी ध्यान में हो, जो आप डेलॉइट का इंटरव्यू दे रहे हो, अगर वो आपको याद हो तो आप बता पाओ. ओके. सो टेक्निकल फ्रंट पे अगर मैं पूछूं, मुझे कोई पूछेगा तो फर्स्टली आईएफआरएस और इंड एस के ऊपर टेक्निकल क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे. सो हम्म, उसका अगर मैंने कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेरे ऑडिट के टाइम पे किया है तो वो मुझे अगर मैं बताऊं तो दैट एड्स अ वैल्यू, बिकॉज दैट शोज कि आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी किसी स्टैंडर्ड का आता है. बिकॉज नेचुरली आप टेक्निकली कुछ रीड करोगे सो यू विल टेल द पैराग्राफ, बट हाउ डज इट अप्लाई इन अ प्रैक्टिकल सिनेरियो इज समथिंग अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. सो दैट हम्म, इज देयर. उसके अलावा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स बहुत अच्छे से नॉलेज उनके बारे में होना चाहिए. मेरे को जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ यू हैव टू इन अ वेरी शॉर्ट वे यू हैव टू सी एक कंपनी का मेन परफॉर्मेंस या क्या चल रहा है उसके अंदर फाइनेंशियल फ्रंट पे, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल पिक अप. सो अ हम्म, पर्सन वुड से बैलेंस शीट, बट अगर बैलेंस शीट उठाया तो ही विल कम टू नो कि ठीक है कंपनी के एसेट्स लायबिलिटीज में कितना मूवमेंट है. पीएनएल उठाया तो उसको पता चलेगा कि कितना रेवेन्यू हो रहा है, बट बुक्स में क्या कैश लायबिलिटी फ्लो पड़ी है वो नहीं. कैश फ्लो है क्या? करेक्ट. सो दैट ओके. एग्जैक्टली. सो दैट इज वेयर, बिकॉज आज के सिनारियो में ऐसे हो गया कि लिक्विडिटी हैज बिकम द की, सो कैश फ्लो इज द थिंग यू विल हैव टू पिक अप. सो वो एक हम्म, क्वेश्चन मुझे पूछा था. सो आप नेचुरली आप अगर सीएफओ को एडवाइस देने वाले हैं, सो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और हम्म. यू नीड टू गिव हिम द करेक्ट एडवाइस. सो यस, आपको फाइनेंशियल्स और बिजनेस के बारे में काफी कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए. चलो, मेरा एक क्वेश्चन तो सही हो गया, कैश फ्लो. जी. अच्छा, ये जब एडवाइजरी में हम लोग काम थे, एश्योरेंस में काम करते हैं, let's suppose, तो असल में हम्म. क्या, व्हाट एग्जैक्टली डू वी डू? अगर आप कोई सरकमस्टांस बता पाओ जब कोई एक कंपनी जो है वो एक दिस अकाउंटिंग एडवाइजरी या अकाउंटिंग एश्योरेंस की टीम को इनवाइट करती है कि वी आर गिविंग यू हम्म. एन एंगेजमेंट, हम्म. तो वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकता है? Okay. So, some really popular examples where companies tend to hire accounting advisory is, one is merger and acquisition. So, किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर
किया है या दो कंपनीज का मर्जर हुआ है, सो नेचुरली ऐसा हो सकता है दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग है, दोनों के प्रोसेसेस अलग है, दोनों के इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क्स अलग अलग है। सो उनको साथ लाना एक चैलेंज होता है, और हमारे लॉज में कंप्लायंसेस इतने रिक्वायर्ड होते हैं कि शायद वो जो उनकी एग्जिस्टिंग फाइनेंस टीम है वो उसी में रह जाती है। ये एडिशनल प्रोसेसेस के लिए दे नीड अ हेल्पिंग हैंड। सो वहां पे वो हमें हायर करते हैं। सो वी हेल्प देम विथ स्टैंडर्ड्स लाइक 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। उसमें उसके बाद फेयर वैल्यूएशन कम्स इनटू प्लेस, आपको फेयर वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंपनी टेक ओवर की है वो छोटी कंपनी है, अकाउंटिंग अपना इंडियन गैप अप्लाई कर रही है, और बड़ी जो कंपनी है वो इंडियस कर रही है। तो वो इंडियस अडॉप्शन करके दोनों के अकाउंट्स को स्ट्रीमलाइन करना, वो एक चीज M&A वाला हो जाता है। सेकेंड एक चीज है IPO एडवाइजरी सर्विसेज। सो कंपनीज आजकल जो स्पीड से कंपनीज IPOs लेकर आ रही है, स्टार्टअप्स फंडिंग रिक्वायरमेंट्स उनकी रहती है। सो बहुत बहुत से वेंचर कैपिटलिस्ट और सेबी के ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि कंपनीज IFRS या इंड AS में मैंडेटरी रिपोर्टिंग करे, बिकॉज इट बिकम्स कंपेरेबल टू द इंटरनेशनल कंपनीज। सो वो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड AS, उससे रिलेटेड सर्विसेज होती है। सो वो फर्म्स प्रोवाइड करती है इस डोमेन में। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बहुत ही पॉपुलर स्पेस अभी जो ऊपर आ रहा है वो है ESG एडवाइजरी। सो इंडिया में 1 अप्रैल 2023 से अब ये इस बार फर्स्ट ईयर ESG के ऊपर रिपोर्टिंग मैंडेटरी हो गई है। सो जो 1000 टॉप लिस्टेड कंपनीज है, दे हैव टू हैव दैट ESG रिलेटेड डिस्क्लोजर्स इन देयर फाइनेंशियल्स, BRSR बोलते हैं। तो business responsibility and sustainability report. So that needs to be there in their annual report, and auditors need to certify that also. But उस report में क्या information जाने वाली है वो companies अभी भी इतनी ज्यादा aware नहीं है। So उसके लिए भी these firms, big fours and other firms provide them advisory services. So that is also a very happening space now. So और इसका ऐसा है ESG आगे जाके कार्बन क्रेडिट एमिशंस एंड ऑल जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स है उन एट पार विद देम आएगा। इसके ऊपर भी एक्सपेक्टेड है कुछ स्टैंडर्ड्स आएंगे। आई थिंक 2 स्टैंडर्ड्स है भी इंटरनेशनली, वो जब इंडिया में अप्लाई होंगे। सो दैट इज हाउ इट इज इवॉल्विंग। सो दिस फील्ड इज न्यू, बट यस सब सर्विसेज इवॉल्व हो रही है। जैसे जैसे बिजनेसेस को जरूरत पड़ रही है हेल्प की, न्यू सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय दीज फर्म्स। ओके, और सारा जितना भी एडवाइजरी होगा वो इसी डोमेन में घुसता चला जाएगा। बिट एंड एडवाइजरी। राइट। ओके, तो अनमोल, वंस वी गेट इनटू दिस डोमेन, तो क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमारे पास आती है? इज इट दैट कि मैं सिर्फ बिग फोर टू बिग फोर ही स्विच करता रहूंगा, या फिर मैं बिग फोर से इंडस्ट्री जा सकता हूँ, या बिग फोर से मान लो मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जा सकता हूँ, जिसमें ये अपने BCG और मैकेंजी वगैरह आ जाते हैं? हाँ, ओके। सो बिग फोर टू बिग फोर तो स्विचेस एनी टाइम पॉसिबल है, बिकॉज सभी उसी डोमेन में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, सो नेचुरली सिमिलर सर्विस लाइन के लिए दे हायर यू। सो दैट इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्री का ऑप्शन भी ओपन है। और इंडस्ट्री में जो रोल्स है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका एक्सपोजर किस में रहा है। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज रिलेटेड टू इंड AS एंड IFRS, सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलेटेड रोल या ग्रुप रिपोर्टिंग रोल्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। ऐसा भी होता है एडवाइजरी में, यू प्रोवाइड देम बिजनेस फाइनेंस रिलेटेड डू दैट वर्क ऑल्सो फॉर देम। सो से आपने वर्किंग कैपिटल के लिए जो वर्किंग्स बनती है वो उनके लिए बनाई है, या फंड्स फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आप बना रहे हैं। बिकॉज सी क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूं मैं। सो मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था, वेर इन अ लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैड टेकन ओवर अनदर स्मॉल कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। सो उस कंपनी के ऑपरेशंस को बंद हुए 203 साल हो गए थे। they had to again overhaul the entire plant and start the operation, जिसके लिए काफी फंड रिक्वायरमेंट लगने वाला था ओवर 1 or 2 years। सो उसके लिए वर्किंग बनाना। सो ऐसी वर्किंग जब आप बनाओगे तो आप बिजनेस फाइनेंस, FP&A रिलेटेड रोल्स भी इंडस्ट्री में आपको मिल सकते हैं। सो इट डिपेंड्स। मैनेजमेंट कंसल्टिंग में जाना आई थिंक मुश्किल नहीं है, पॉसिबल है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि वो फर्म्स में वो सर्विसेज आपने जो प्रोवाइड किया और उन लोग जिस रोल के लिए ढूंढ रहे हैं वो कितनी एट वन लेवल बैठती है। बिकॉज मैंने ऐसा देखा है इन फर्म्स में MBAs को ज्यादा प्रेफर किया जाता है,
बट यस सीएस भी हायर होते हैं. ओके, मतलब कि बहुत सारा वाइडर अपॉर्चुनिटीज है. आई गो इनटू दिस. राइट राइट राइट. ओके. एंड इफ आई टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस, कि आपको कैसा लग रहा है इस हम्म. डोमेन में काम करते हुए, तो व्हाट इज इट लाइक? हाँ सो मेरा एक्सपीरियंस इसमें काफी काफी अच्छा और पॉजिटिव रहा है, क्योंकि मैंने ऑडिट के बाद जब इन सर्विसेज के लिए काम किया, सो मैंने चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया. बिकॉज ऑडिट में आई पर्सनली फील आप एक लेवल के बाद आपका स्कोप रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. बिकॉज इफ यू हैव बीन डूइंग समथिंग इन अ स्पेसिफिक वे, यू विल डू इट इन दैट वे ओनली. यू विल हैव अ चेकलिस्ट एंड यू विल डू इट दैट वे. लेकिन इसमें आपको दिमाग इतना ज्यादा ओपन रखना पड़ता है, बिकॉज वेन यू आर गोइंग टू दैट पर्सन, सीएफओ या उस फाइनेंस पर्सन के पास आप जा रहे हो, आपको एक खुले दिमाग के साथ जाना पड़ेगा. बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन वेर इन आप किसी टेक्निकल चीज को उनके पास लेके जा रहे हो, बट उनका माइंड क्लोज्ड है. दे डोंट हैव दैट पर्सपेक्टिव कि इसका इम्पैक्ट उनके कंपनी या उनके फाइनेंशियल्स पे क्या आएगा. सो उनको उस चीज को समझाना एक्सप्लेन करना, दैट इज समथिंग आपको अपना सारा होमवर्क करना पड़ता है, जिसके लिए आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है. और नेचुरली जब आप इंडस्ट्री में नए चीजें आ रहे हैं, नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी इंश्योरेंस 117 को लेके बहुत हाइप है. दैट इज अ वेरी हैपनिंग सर्विस लाइन अभी. सो उसको लेके जब आप अपडेटेड रहते हो, आप स्टैंडर्ड पढ़ते हो, सो काफी इंटरेस्ट आता है मुझे पर्सनली उस लाइन में. ओके, सो मोर और लेस दिस एडवाइजरी डोमेन इज कि कोई सा भी अगर कॉम्प्लेक्स चीज है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, मान लो फॉरेन का सब्सिडरी का एक्विजिशन है या इंडियन सब्सिडरी का एक्विजिशन है, आईपीओ करने जाते हैं, या लेट्स सपोज डीलिस्टिंग भी कर रहे हैं, है ना? राइट. तो पूरा पूरा जो इसमें अगर हम लोग एडवाइजरी देंगे तो वो इस डोमेन में आता है. तो इसमें क्या करेक्ट. ये पीपीटी फॉर्म में जाता होगा आपका रिपोर्ट? तो व्हाट आई फील, इसमें डिलीवरेबल्स है ना, कोई स्कोप फिक्स नहीं है. बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि आप किसी पीपीटी या एक्सेल में देंगे. हाँ, कुछ भी हो सकता है. ऑल इन ऑल ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके कोई डिलीवरेबल्स, कमिटेड डिलीवरेबल्स नहीं हो. बिकॉज ऐसी सर्विसेज हैं जहां मैंने देखा है कि क्लाइंट को की फाइनेंस टीम उतनी ज्यादा टेक्निकली साउंड नहीं है. सो हम लोग उन्हें लोन स्टाफिंग भी करते 6 months और 1 year से वी आर वर्किंग एज देयर फाइनेंस टीम वर्किंग फॉर देम. तो उसमें कोई डिलीवरेबल नहीं है, बट नेचुरली उनका जो डे टू डे थिंग्स है वी लुक आफ्टर देम. सो स्कोप नहीं है. ये ऐसा फील्ड है जिसमें ओपन स्कोप हो सकता है. सामने क्लाइंट को जो लगे कि उसको आपकी जरूरत है, वो आपको वहां इन्वॉल्व कर सकता है वैसा. आपसे बात करके लग रहा है कि मैं भी इसी फील्ड में करा जाऊँ. ओके. Anmol, I think we have covered most of the things. So, thank you for giving us insights. आपने बहुत सारी चीजों को कवर कर लिया इसमें. And I hope थैंक जो यू. भी आपको सुन रहे होंगे उनको काफी ये यूजफुल लगा होगा. So, राइट, आई रियली होप सो. thank you, Anmol. Thank you for coming here. Thanks a lot, Sudhanshu, for having me here. And I must say, you're doing a really good job. कि जो fields लोगों को या हमारे सीए फ्रेटर्निटी को नहीं पता है, आप उनको सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करो. रियली अ कमेंडेबल जॉब. Thank you, Anmol. Thank you. You are the one who are explaining, not me. So, But you took that efforts to have me on your channel. Thanks a lot for that. thank you, Anmol. Yeah, thank you.